ہوتے ہیں. یاد رکھنا اگر باپ کے احسانوں کو بھول گئے, اگر باپ کو ناراض کر دیا یا اگر ماں کو ناراض کر دیا اور پھر سوچ لیے کہ ماں باپ کو ناراض کرنے کے بعد جنت کی بہاریں ہمارے لیے ہیں, جنت کا سکون ہمارے لیے ہے, جنت کا چین ہمارے لیے ہے, جنت کا آرام ہمارے لیے ہے, تو اس خواب و خیال میں مت رہنا کہ اگر ماں باپ ناراض ہوں گے تو جنت میں چلے جاؤ گے. اس خیال میں مت رہنا اگر ماں باپ خفا ہوں گے تو جنت کا آرام ملے گا. وہی بات کہ اگر ماں باپ کے انتقال کے بعد اپنے ذہن کو قریب کر کے سمجھے گا, ماں باپ کے انتقال کے بعد اگر ان کی اولاد ان کے نام سے کوئی بھی اصالہ ثواب کرتی ہے, نیک کام ان کی اولاد اگر کرتی ہے, تو یہ ان کے ماں باپ کی پرورش کا نتیجہ ہوا کرتا ہے. اگر ماں باپ نے پرورش اچھی کی ہے تبھی جا کر کے ان کی اولاد ان کے لیے نیک کام کیا کرتے ہیں. اور یہ محفل پاک میں نہیں جانتا کہ ان کے بچوں کا رویہ کیا تھا ان کے ساتھ, مجھے نہیں پتا ہے ان کے بیٹوں کے حالات کیا تھے ان کے ساتھ, لیکن یہ محفل پاک اس بات کی دلیل ہے, اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی ماں نے ان کی تربیت اچھے طریقے سے کی ہے, اچھے طریقے سے کی ہے. ابھی اس کے بارے میں بتاؤں گا. محفل پاک جب انسان سجا دیتا ہے کسی مرحوم کے نام سے یا مرحومہ کے نام سے, تو فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے بریلی کے امام کے چند اشعار, شافعیت کی جان, حقانیت کی پہچان, علم کے چٹان, چلتے پھرتے کنز الایمان یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں, یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. کسی شاعر نے بہت پہلے کہا تھا, میں غریب ہوں زردار سے نہیں ملتا, میں غریب ہوں زردار سے نہیں ملتا, ضمیر بیچ کر مکار سے نہیں ملتا, میں غریب ہوں زردار سے نہیں ملتا, ضمیر بیچ کر مکار سے نہیں ملتا, اور اللہ کا تحفہ ہے اسے سنبھال کے رکھنا, اللہ کا تحفہ ہے اسے سنبھال کے رکھنا, ماں باپ کا پیار ہے کسی بازار سے نہیں ملتا, ماں باپ کا پیار ہے کسی بازار سے نہیں ملتا. حضرات یہ ہم اور آپ آ کر کے بیٹھے, یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. کہ ماں اور باپ یہ دو نام جو ہے نا بڑے عظیم ہوتے ہیں اور ان کی ذات بھی بڑی عظیم ہوا کرتی ہے. آج بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے, پیدا ہوا, دنیا میں آیا, تو اس کو ماں باپ کی ضرورت کب تک ہے؟ جب تک وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑ نہیں پاتا ہے, اپنے پیر سے چل کر کے کہیں جا نہیں ساتھ پاتا ہے. کب تک اسے ضرورت ہے؟ جب تک دو چار پیسے کما کر کے لا نہیں پاتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے اکثر بچوں کا یہ رویہ ہوتا ہے, یہ حالت ہوتی ہے, جب وہ کمانا شروع کرتا ہے نا, اب اس کی عمر کا لحاظ نہیں کہ 18 سال کا ہے کہ 20 سال کا ہے کہ 15 سال کا ہے کہ 22 سال کا ہے. جب اس نے کمانا شروع کر دیا, پہلی کمائی لے کر کے آیا تو خوشی خوشی ماں باپ کو دے دے گا, لیکن اس کے بعد جب پیسہ لے کر کے آئے گا تو اس کے تیور الگ ہوں گے, اس کا انداز الگ ہوگا. اب یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ انہی لوگوں کا بیٹا ہے. اب اس طریقے سے وہ غصے میں ہو کر کے بات کرے, ارے بہت فالتو پیسہ اڑا دیتے ہیں آپ لوگ, لیکن اسے یاد نہیں ہے ایک دن وہ تھا جب وہ چھوٹا تھا, 1 روپیہ نہیں, 2 روپے کی بات نہیں تھی, 10 یا 20 کی بات نہیں تھی, بلکہ اگر 1000 2000 کی بات ہوا کرتی تھی, صرف اشارہ کر دیا کرتا تھا تو ماں باپ اس کے قدموں پہ نچھاور کر دیا کرتے تھے.
वो नहीं देखते थे कि मेरे बेटे ने क्या फरमाइश की है, वो नहीं देखते थे कि मेरे बेटे ने क्या मांगा है, बस ये देखते थे कि मांगा मेरे बेटे ने है, इस चीज की ख्वाहिश मेरे बेटे ने की है। आज हम और आप अपने माते हैं, कौन सा मामला अपने माँ बाप के साथ हम पेश किया करते हैं। आज बाप से लोग इस तरीके से कह देते हैं, माँ से इस तरीके से कह देते हैं, तुम दोनों ने हमारे लिए क्या क्या है, हमारा कौन सा काम तुम दोनों ने कर लिया। मैं तुमसे कहना चाहूंगा प्यारो, मेरी बात को जरा गौर से सुनने की कोशिश करना। ये माँ बाप तुम्हारे लिए वो कर दिए हैं जो कोई तुम्हारे लिए नहीं कर सकता है। या तुम्हारा बाप था जब तुम बचपने के आलम में थे, छोटे थे, गौर करना मेरी बातों पर, जब तुम छोटे थे सबके साथ ये मामला होता है, ये हालत सबके साथ हुआ करती है। आप भी बचपने में थे, मैं भी बचपने में था, हजरत भी बचपने में थे, आली जनाब अब्दुल हफीज भी बचपने में थे, आपका भी बचपना था, हमारा भी बचपना गुजरा, आपका बचपना आपके बाप के साथ गुजरा और आपके साथ आपके बच्चों का बचपना गुजरेगा, तो उनके साथ भी वो मामला होंगे। आप बचपने के आलम में थे, छोटे थे, अगर आपने अपने बाप से कुछ कहा होगा, ऐ मेरे अब्बा जान मुझे ये चीज चाहिए, अब वो चीज कहां से लानी है मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे फला चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रत्ना पार का रहने वाला कोई बच्चा है, चाहे वो अब्दुल्ला का बेटा है, चाहे जहांगीर का बेटा है, किसी का भी बेटा हो, अगर उसने कह दिया ऐ मेरे अब्बा जान मुझे ये चीज चाहिए, जैसा प्रधान के बेटे ने चीज ली है, जैसा उसके बेटे ने कपड़ा पहना वैसे मुझे कपड़ा चाहिए, जैसे जमींदार के बेटे ने अपने पैर के अंदर जूता पहना है, मुझे भी वैसा जूता चाहिए। आपने अपने बाप से कह दिया, आपके बाप ने सुन लिया, तो हमें क्या लगता है कि हमारा बाप सुन लिया तो खामोशी से बात खत्म हो गई? नहीं प्यारे, बल्कि जब बाप बात को सुना करता है, सुनने के बाद अब उस जगह पहुंचता है जहां वो काम किया करता है, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे कोई दुकान हो या कोई और जगह हो जहां पर वो काम किया करता है, वापस जाता है, जाने के बाद अपने मालिक से कहा करता है, ऐ मेरे मालिक इस बार मुझे पैसा डबल चाहिए, मुझे तनख्वाह डबल चाहिए, मुझे सैलरी डबल चाहिए। या तुम्हारे बाप को काम करते करते 10 साल गुजर गए थे, तुम्हारे बाप को काम करते करते 22 साल गुजर गए थे, लेकिन तुम्हारे बाप ने 22 साल में कभी डबल तनख्वाह नहीं मांगी थी, तुम्हारे बाप ने 20 साल में कभी डबल तनख्वाह नहीं मांगी थी। आखिरकार मालिक भी सोचने पे मजबूर हो जाता है, इतने अरसे से ये काम कर रहा है, इतनी मुद्दतों से ये काम कर रहा है, लेकिन आज से पहले इसने कभी मुझसे डबल तनख्वाह नहीं मांगी थी, कभी इसने मुझसे डबल सैलरी नहीं मांगी थी, अचानक इसे डबल तनख्वाह की जरूरत कैसे पेश आ गई? तो मालिक पूछ बैठता है कि बता तो सही, इससे पहले तूने मुझसे कभी डबल तनख्वाह नहीं मांगी है, कभी भी तूने मुझसे डबल पैसा नहीं मांगा है, लेकिन आज डबल तनख्वाह मांगने की क्या जरूरत है? आज डबल पैसा मांगने की क्या जरूरत है? यार मैं बता रहा हूं बाप की शान क्या होती है, बाप का मकाम और मर्तबा क्या होता है, बाप तुम्हारे और मेरी जिंदगी में कैसा रोल रखा करता है, उसकी अहमियत कितनी है तुम्हारी और मेरी जिंदगी के अंदर। तो वो बाप हुआ करता है, गया है जाने के बाद कहा है मेरे मालिक मुझे डबल पैसे चाहिए, डबल सैलरी चाहिए। जब मालिक ने कहा था आखिरकार डबल पैसा क्या करेगा, डबल सैलरी क्या करेगा ले जा करके, तब उस बाप ने कहा था अरे मेरे मालिक मुझे ये पैसा मेरी जरूरत के लिए नहीं चाहिए, मुझे अपने फायदे के लिए नहीं चाहिए, बल्कि मेरे बेटे ने मुझसे एक चीज मांगी है, मुझे वो चीज ले जा करके अपने बेटे को देनी है। मेरे बेटे ने मुझसे एक फरमाइश की है, मुझे अपने बेटे की फरमाइश को पूरी करनी है, इसलिए कि मेरे बेटे ने मुझसे मांगा है और मैं ये नहीं चाहता मेरा बेटा मुझसे ना उम्मीद हो जाए, मैं ये नहीं चाहता मेरा बेटा मुझसे मायूस हो जाए, मैं ये नहीं चाहता मेरे बेटे का दिल टूट जाए, इसलिए मैं वो सामान लेने के लिए तुमसे डबल पैसा मांग रहा हूँ, डबल तनख्वाह मांग रहा हूँ, डबल सैलरी मांग रहा हूँ। तो वो मालिक जो हुआ करता उसे पैसा देना ही है, उसे काम से मतलब है, उसने डबल पैसा दे दिया तो हमारा और तुम्हारा बाप सीधा घर नहीं आता है, बल्कि मार्केट के अंदर जाता है। जो कपड़ा हमने कहा था, जो जूता हमने कहा था, जो खिलौना हमने कहा था, वो खिलौना लेता है, वो जूता और कपड़ा लेता है, लेने के बाद फिर घर आया करता है। घर जब आकर के पहुंचता है, घर आने के बाद अपनी बीवी से, अपनी अहलिया से कहता है कि बेटे को बुलाया जाए। अगर वो कह दे बेटा सो चुका है, बेटा नींद में मशगूल है, नींद में मसरूफ है, तो वो बाप ऐसा नहीं सोचता है कि बस बेटा सो रहा है छोड़ दिया जाए, बल्कि वो अब देखना चाहता है अपने बेटे के ऊपर कि वो जूता किस तरीके से लग रहा है, वो कपड़ा मेरे बेटे के ऊपर कैसा लग रहा है, वो खिलौने के साथ मेरा बेटा किस तरीके से खेलेगा,
वो बाप कहता है जाकर के मेरे बेटे को जगाया जाए, मेरे लख्त जिगर को जगाया जाए, मेरे नूर नजर को जगाया जाए। तब उस बच्चे को जगाया जाता है। जब उस बेटे को जगाया गया है, वो बाप आता है, आकर के अपने बेटे को कपड़ा उसी रात की तारीकी में पहना रहा है जिस रात में लोग ख्वाबे खरगोश की नींदें ले रहे हैं, लेकिन वो बाप की मोहब्बत है, बाप का प्यार और उसका इश्क है। आकर के वो देखता है और पहनाता है कपड़े को, फिर गौर करता है मेरा बेटा इस कपड़े में कैसा लग रहा है, ये कपड़ा मेरे बेटे के ऊपर कैसा लग रहा है। वो देखता जाता है, अपने बेटे की बलाएं लेता जाता है, वो देखता जाता है और दुआ करता जाता है, ऐ मेरे पाक परवरदिगारे आलम, जिस तरीके से आज मेरा बेटा इस कपड़े को पहन करके खुश है, इसी तरीके से इसे हमेशा तू खुश रखना, उसी तरीके से इसे हमेशा शादो आबाद रखना। ये दुआ देता हुआ बाप फिर बेटे को सोने के लिए कह देता है। वो बेटा तो सो चुका है, बेटा फिर नींद में मस्त है, नींद में मशगूल है, सुबह की सफेदी नमूदार हुई है। वो बेटा उठा है खेलने के लिए, अपने दोस्तों और यारों को दिखाने के लिए। हमारा और आपका भी यही हाल हुआ करता था। हम और आप भी जब नया कपड़ा पाया करते थे या नया जूता पाया करते थे या कोई नया खिलौना पाया करते थे तो अपने दोस्तों को दिखाने के लिए जाया करते थे, ऐ मेरे भाई देख मेरे बाप ने मेरे लिए ये कपड़ा लाया है, ऐ मेरे भाई देख मेरे बाप ने मेरे लिए जूता लाया है, ऐ मेरे भाई देख मेरे बाप ने मेरे लिए खिलौना लाया है, चल इस खिलौने के साथ खेला जाता है। वो बाप ला करके तो दे देगा, हम और आप लेकर के खेलने के लिए चले गए। वो बच्चा गया है, अब जाकर के अपने दोस्तों को दिखा रहा है। अब जो बात मैं बताना चाह रहा हूं उस पर आपकी तवज्जो चाहिए। यार बाप ने ला करके हमें कपड़ा दे दिया, हमें जूता दे दिया, हमें खिलौना दे दिया, लेकिन क्या हमने सोचा कि बाप ने जो डबल तनख्वाह ली है, बाप ने डबल सैलरी ली है, बाप ने डबल पैसा लिया है, तो जब वो अपने कंपनी के अंदर से, उस दुकान के अंदर से जहां वो काम कर रहा था, जब अपने मालिक से उसने डबल पैसा लिया है, तब उसे काम भी डबल करना पड़ेगा, मेहनत भी उसे डबल करनी पड़ेगी, मजदूरी भी उसे डबल करनी पड़ेगी, ड्यूटी भी उसे दोगुना करनी पड़ेगी। अब मैं कहना चाहूंगा यार अगर बाप ने फरमाइश पूरी की है तो अपने बेटे की है, अगर चाहत पूरी की है तो हमारी और आपकी की है, लेकिन मजदूरी कर वही रहा है, पसीना बहा वही रहा है, खून को अपने पसीने की शक्ल में अगर अपने बदन से उतार रहा है तो हमारा और आपका बाप है। जिस रात में लोग आराम से सोते हैं, जिस रात में लोग चैन सुकून से सोया करते हैं, उस रात में हमारा और आपका बाप काम करता हुआ नजर आता है। वो दिन में भी काम कर रहा है, रात की तारीकी में भी काम कर रहा है, सुबह के उजाले में भी काम कर रहा है, रात के अंदर भी काम कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा अगर सिर्फ उसके पेट की बात होती, सिर्फ उसके भूख की बात होती तो सिर्फ एक दिन काम करता, एक हफ्ते बैठ करके खा सकता था, एक दिन मजदूरी करता, एक हफ्ते आराम से खा सकता था, लेकिन नहीं प्यारे, उसने हमारी भूख का ख्याल किया है, हमारे ख्वाहिशों का ख्याल किया है, हमारी तमन्नाओं का ख्याल किया है, हमारे इजहारों का ख्याल किया है। और आज हम बड़े होने के बाद जब दो चार पैसा कमाने लगते हैं तो उसी बाप को ताना दिया करते हैं, उसी बाप को उल्टा सीधा बोला करते हैं। याद रखना अगर बाप के एहसानों को भूल गए, अगर बाप को नाराज कर दिया या अगर माँ को नाराज कर दिया और फिर सोच लिए कि माँ बाप को नाराज करने के बाद जन्नत की बहारें हमारे लिए है, जन्नत का सुकून हमारे लिए है, जन्नत का चैन हमारे लिए है, जन्नत का आराम हमारे लिए है, तो इस ख्वाबो ख्याल में मत रहना कि अगर माँ बाप नाराज होंगे तो जन्नत में चले जाओगे। इस ख्याल में मत रहना अगर माँ बाप खफा होंगे तो जन्नत का आराम मिलेगा। इस ख्याल में मत रहना कि अगर माँ बाप तुमसे नाराज है, उनका दिल तुमसे दुखा हुआ है, तुम्हें जन्नत में डाला जाएगा। कभी नहीं हो सकता। अगर माँ नाराज है या बाप नाराज है, यार जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी मैसर नहीं होगी, जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की महक भी नहीं मिलेगी। मैं कहना चाहूंगा अगर चाहते हो कि जन्नत की वादियों में टहलने के लिए मिल जाए, अगर चाहते हो कि अल्लाह जन्नत का सुकून दे दे, अगर